اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إن يجد في بدني ضعفا فقلت له إنا لله يا أبت فقال يا فاطمة ليتني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به يمسكه أنظر إليه وإذا وجهه يتلو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت نعم وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعلم لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن السلام عليك يا جداه والسلام عليك من تراه الله قال وعليك السلام يا ولدي يا شافع دخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك الأبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله قلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزرتي فدخلت تحت الكساء فلما كنا جميعا تحت الكساء أخذه رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحم من لحمي ودم من دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبتكم هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهاب تعمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا إلا لأجلكم ومحبتكم. बैठ जाओगे जाके बैठ जाओ. يا رسول الله. وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ما أنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجمعنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفائزوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله عما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجات إلا وكذا الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فائزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. Please recite Surah Al-Fatiha for the marhumin of the Mu'mineen present. اللهم صل على محمد وآل محمد. सजाद बन के कहती जग शाम में शहर आया सजाद बन के कहती जग शाम में शहर आया कोई जुल्म ऐसा ने जिस रुवाया सजाद बन के कहती जद शाम में शहर आया
बन के कैदी जद शाम शहर आया, सजाद बन के कैदी जद शाम शहर आया। उठ शाम चलिए आबिदे मेरे वीर मर गए सारे, नेज़े दे नाल बुरके सदिशा मिया उतारे। के रश्तो ज़ैनब सजाद नु जगा या सजाद बन के कैदी जद शाम शहर आया, सजाद बन के कैदी जद शाम शहर आया। लुट कर बला दी वापिस सजाद नू मिली है, ज़ैनब बिरा दी उंगली बहुदे दी लपदी रही है, खाली अंगूठी दे दूर बस बहन दे ओला या सजाद बन के कैदी जद शाम शहर आया, सजाद ज़ालिम वक्त आबिदे मैनू दीवे सिर बिरादा, खुलता करावे मातम मज़लूम करबला दा, हुए पूरी दिल दी हसरत मैं सोग नहीं मना या सजाद बन के कैदी जद शाम शहर आया, सजाद बन के कैदी जद शाम शहर आया। कोई जुल्म तक ऐसा एनु खून जिस रुवाया, सजाद बन के कैदी जद शाम शहर आया। और किसने पढ़ा? बुलंदर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। की सुना हाल पे तकसीरां दा, की सुना हाल पे तकसीरां दा, की सुना हाल पे तकसीरां दा, की सुना हाल पे तकसीरां दा। भूलना नहीं एहसान ज़ैनब ते अमीरों दा, भूलना नहीं एहसान
लाशां विचों वीर नूं लभदी उजड़े दी तस्वीर नूं लभदी लाशां विचों वीर नूं लभदी उजड़े दी तस्वीर नूं लभदी करज़ा चढ़ गया वीरां ते शमशीरां दा करज़ा चढ़ गया Eso, I need your help later. I'm going to get the food now to another page. Are you going to post it? That's what I'm doing. Hold else I will bring up. When you finish, stop. Are you going to edit it? No. Because if you want to edit it, then we can cut that down. I mean, I can do it, but when you want to post it on the this not take too long. No? So I'm going to do all noise on the slide and place it first in 3. के लिए निरंतर सलाम के लिए निरंतर हर एक वस्फ है इतने शुमार कौन करे अली के वस्फ है इतने शुमार कौन करे ये काम तेरा है परवरदिगार कौन करे ये काम तेरा है परवरदिगार कौन करे अली के वस्फ है इतने बुलंद तर सलावत खुदा ने और अली ये सोच कर न बनाया खुदा ने और अली शिगफ काबे में अब बार बार कौन करे नारा हैदरी अली के बस है इतने न पूछिए कि क्या हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है खुदा के दी का ना खुदा खुदा के दी का ना खुदा हर इब्तिदा की इब्तिदा करम की इंतहा हुसैन है करम की इंतहा हुसैन है
पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हमसिरी किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। न कोई दूसरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। थोड़ा सा और आगे खड़े हो जाओ। फना के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फिशार से अजाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया कि कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है। तो मैंने कह दिया हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। करोगे गई मुखालिफत गमे हुसैन की, यहाँ वो हश्र हो हश्र में के अल हफीज अल्लमा। जहाँ भी छुपने जाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे, कहीं पे बच ना पाओगे कि हर जगह मेरा हुसैन, कि हर जगह मेरा हुसैन। न पूछिए कि क्या हुसैन है। ये सोचता कि आबिद का हाल क्या होगा। असीर हो के वो जब शाम में गया, होगा ये सोचता हूँ। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। ऊपर से लाए। न जाने शिम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। ये सोचता हूँ।
आबिद का हाल क्या होगा, ये सोचना कुरान दा कारी कुरान दा कारी मस्तूरा बेरिदाने मस्तूरा बेरिदाने मस्तूरा बेरिदाने मस्तूरा बेरिदाने उतो शाम तैयारी सिना सारे बाजार सज गए, घर घर चरागा होया, सैनाब दी बेबसी ते अतरू लहू दे रोया, अतरू लहू दे रोया। शाम दे विचाले रोया खून मुहारी सिना दियो किते सिना दियो किते कुरान दा कारी सिना दियो किते सिना दिनो किते मस्तूरा बेरिदाने मस्तूरा बेरिदाने मस्तूरा बेरिदाने मस्तूरा बेरिदाने उतो शाम तैयारी सिना दिनो किते सिना दिनो किते सारे बाजार सज गए, घर घर चरागा होया, सैनाब दी बेबसी ते अतरू लहू दे रोया, अतरू लहू दे रोया। शाम दे विचाले, शाम दे विचाले
नहीं जले रब जाने दे वीरन आए रब जाने दे वीरन करबल जो कदोने सुगरा तो बिछोड़े दे सदमे नहीं जले जाने अकबर जे पता होंदा तनु जान ना दे दी मैं अकबर जे पता होंदा तनु जान ना दे दी मैं परदेस च जागे तू आए परदेस च जागे तू मैनू खत भी नहीं हो पाने सुगरा तो बिछोड़े दे सदमे नहीं जले जाने रब जाने दे वीरन आए रब जाने दे वीरन करबल जो कदोने सुगरा तो बिछोड़े दे सदमे नहीं जले तेरे जोग चपट देने संजी निधनी कर दे तेरे जोग चपट देने संजी निधनी कर दे अख्तर जय हजाराज आए अख्तर जय हजाराज मौला तेरे दीवाने सुगरा तो बिछोड़े दे सदमे नहीं जले जाने रब जाने दे वीरन आए रब जाने दे वीरन करबल जो कदोने सुगरा तो बिछोड़े दे सदमे नहीं जले अला सय्यदना व मौलाना व शफी'i اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد सबसे पहले मैं अपना मुरादी और खुसूसन अपने मौला वाक़ा इमाम ज़माना अजरल्लाह اللهم صل على محمد وآل محمد आज शब शहादत इमाम इस आयत की तिलावत को शेख हासिल किया इसमें खुदावंद ने ताल इरशाद फरमा रहा है इन्नमल मुमिनूना इख्वा यकीनन फकत और फकत मोमिनीन आपस में का कोई रिश्ता नहीं है मगर ये आपस में भाई भाई बेशक असलहु बैन अखवैकुम और सुलह करो इस्लाह करो दूर करो अपनी भाईचारगी के वत्तकुल्लाह और अल्लाह के तक़वा इख्तियार करो लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए
इस आयत में खुदावंद मुताल बहुत वजाहत के साथ इरशाद फरमा रहा है कि यकीनन इख्तिलाफ और वहदत की बात वहाँ पर की जाती है जहाँ पर इख्तिलाफ पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद की बात वहीं पर होती है, इत्तेकादी इख्तिलाफात हैं, लिहाजा वहाँ पर हम कहते हैं दीगर मुसलमान भाइयों से अहले सुन्नत से इत्तेहाद करना चाहिए। लेकिन जब बात मोमिनीन की आती है तो कुरान वहाँ इत्तेहाद की बात नहीं करता, बल्कि कहता है कि तुम तो भाई, तुम्हारा रिश्ता कोई और है ही नहीं। इन्नमा, आप सब जानते हैं, इन्नमा हस्र में से है, यानी अल्लाह से हस्र से बयान कर रहा है कि तमाम के तमाम मोमिनीन वो जो है सिर्फ भाई हैं। इनके दरमियान अगर कोई रिश्ता पाया जाता है तो भाई का रिश्ता पाया जाता है। इनके दरमियान ना कोई कौम होती है, ना कबीला होता है, ना नस्ल होती है। अगर कोई रिश्ता है तो वो साहिबाने ईमान होने की बिना पर वो सिर्फ अखवा का रिश्ता है। लेकिन अल्लाह जानता है कि इख्तिलाफ हो सकता है, फिर भी इंसान दूरी इख्तियार हो सकती है, तो फिर अल्लाह फिर हुक्म देता है फस्ल, फिर इस्लाह करो। किस बात की इस्लाह करो? बैना खबैकुम, अपने दरमियान भाईचारगी। अगर भाई भाई से दूर हो जाए तो भाई भाई से दूर हो सकता है, दुश्मन नहीं हो सकता। लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन वह अदावत नहीं होनी चाहिए। इस भाई में मैं कहता हूँ कि अगर दो सुलभी भाई भी हों, उनमें भी इख्तिलाफ होता है, उनके अंदर भी जो है मुश्किलात पैदा हो जाती है, लेकिन उसके मायने की दुश्मनी हो जाए कतन ये खिलाफ है, ये हुर्मत रखता है। हमारे दरमियान यकीनन बाज़ चीज़ों पे इख्तिलाफ हो जाता है और हो गया है, जिसकी बिना पे आज हम यहाँ बैठे हैं। ऐसान मोहतरम, कुरान का हुक्म ये है कि हर शख्स वो जो साहिब ईमान होने का दावा करता है तो उसके लिए शर्त ये है कि वो दूसरे मोमिन को अपना भाई तसव्वुर करे। अगर वो भाई तसव्वुर नहीं करता, वो खिलाफ कुरान काम कर रहा है, वो खिलाफ वही इलाही काम कर रहा है। हर मोमिन जो है वो यकीनन हमारा भाई है। अल्लाह ताला आगे कहते हैं वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तर्जुन, शायद अल्लाह का तकवा इख्तियार करने से तुम पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाएं, तुम पर रहम किया जा सके। इसलिए कि अगर इंसान तकवा इलाही इख्तियार नहीं करेगा, रहमत इलाही से दूर रहेगा। जहाँ जहाँ इख्तिलाफ होगा वो रहमत इलाही से दूर है, जहाँ पर फसाद है वो रहमत इलाही से दूर है। ना वहाँ मलाइका नाजिल होते हैं, ना अल्लाह की वहाँ पर रहमत नाजिल होती है। लिहाजा इज़ानी मोहतरम, मैं आप तमाम हजरात को इस मकाम से सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा कि इख्तिलाफ यकीनन हो जाता है और यकीनन हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो चुका है, और उसकी मैं एक मरतबा वजाहत कर चुका हूँ। ऐज़ानी मोहतरम, जिस दिन से ये कायनात बनी है और इस कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद तख्लीक किया, उस दिन से दो पावर वजूद में आ गई। एक रहमानी पावर है और एक शैतानी पावर है। जब अल्लाह ताला ने इन्नी जाइलकुम फिल अर्द खलीफा, जैसे ही कहा मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, वहीं पर इब्लीस ने अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, और उसने इस्तकबार किया, तकब्बुर किया, वो कुफार में से करार खा गया। तो इज़ानी मतलब वहां से पावर डिवाइड हो गई, एक पॉजिटिव पावर जिसे रहमानी पावर कहा जाता है, एक नेगेटिव पावर जिसे शैतानी पावर कहा जाता है। ये हमेशा से है और ये कयामत तक रहेगी। लिहाजा जो शैतानी ताकतें होती हैं वो हमेशा इख्तिलाफ चाहती हैं, वो फसाद चाहती हैं, वो बर्बाद करना चाहती हैं अक़वाम को। मैं अर्ज कर चुका कि ज़ानी मौत में एक वक्त था जब मसीहत का चर्चा हुआ करता था। इस चर्च आपके सामने है, ये आपका इदारा भी उसी चर्च का हिस्सा रह चुका है। एक ज़माने में इस दुनिया के हिस्से में चर्च की हुकूमत होती थी, इनकी फौज होती थी, इनकी अपनी पुलिस होती थी, इनकी हुकूमत होती थी और चर्च हुकूमत करता था। लेकिन जब दुनिया की कुछ ताकतों ने देखा कि चर्च जो है उसने जुल्म करना भी शुरू कर दिया था और कुछ चीज़ें ना गलत बात हो गई थी, लेकिन एक मजहब को इतना स्ट्रॉन्ग देखा तो उन्होंने क्या हरबा इस्तेमाल किया, कहा कि तलाश करो कि इनके मुताकाबिल कौन अफराद है। तो उन्होंने तलाश किया, कहा दूसरा बड़ा मजहब जो नजर आता है वो इस्लाम नजर आता है, दूसरा बड़ा दीन जो नजर आता है इस्लाम नजर आता है। लिहाजा मसीहियों को मुसलमानों से और मुसलमानों को मसीहियों से लड़ा दिया। ये पहला हरबा था। मुसलमानों को एक दो अदियान जो आसमानी अदियान थे, जो अल्लाह वाहदहू ला शरीक पर अकीदा रखते थे, कयामत पर अकीदा रखते थे, नबूवत पे अकीदा रखते थे, कब्र पे अकीदा रखते थे,
हश्र पे अकीदा रखते थे। इन दोनों मज़ाहिब को तीसरी ताकत ने लड़ा दिया। नतीजा क्या हुआ? मुसलमान भी ज़ईफ हो गए और मसीही भी ज़ईफ हो गए। मसीहियों की हुकूमत गिर गई, जिसको हम सलीबी जंगे कहते हैं, उनकी हुकूमत खत्म हो गई, मुसलमान भी मुस्तज़अफ़ हो गए। लेकिन फिर जब दुनिया के शयातीन ने ये देखा कि अभी भी मसीहियत खत्म होने के बाद इस्लाम में अभी भी रूह बाकी है और इस्लाम अभी भी पावरफुल मजहब है, दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है, तो उन्होंने फिर दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। कहा अब इनमें तलाश करो, अब मुसलमानों को कैसे तोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा इनमें दो तफरीक पाई जाती है, एक को सुन्नी कहा जाता है, एक को शिया कहा जाता है, लिहाजा शिया को सुन्नी से लड़ा दो और सुन्नी को शिया से लड़ा दो। लिहाजा उन्होंने जब सुन्नी को शिया से और शिया को सुन्नी से लड़ाया, नतीजा क्या हुआ? वो अहले सुन्नत का गिरोह मुस्तज़अफ़ हो गया, वो कमजोर पड़ गया, वो नातवा हो गया। आज अहले सुन्नत का ग्रुप जो है वो नातवा है, शियों का ग्रुप नातवा है। उसकी भी एक सादा सी मिसाल कि हमारे नबी की तौहीन की जाती है, हमारे किताब को जलाया जाता है। हम इतने गैर मुत्तहिद थे कि ना हम अपने कुरान का दिफा कर सके, ना अपने हम नबी का दिफा कर सके। अजीज़ान मोहतरम, इसके बाद जब मोमिनीन ने देखा, जब लोगों ने देखा और शैतानी ताकतों ने देखा कि ये हमने मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया, मुसलमान ज़ईफ हो गए, फिर उन्होंने, हम जिस सदी में गुजर रहे हैं ये यकीनन वो सदी है 1400 साल से तशय्यो का चेहरा इस तरह से निखर के नहीं आया था। दुनिया में मुसलमान भी नहीं जानते थे शिया किसे कहते हैं। आज दुनिया की हर हुकूमत, हर इस्तेमार, हर साहिब फिक्र, हर साहिब कुदरत जानता है कि तशय्यो किसे कहते हैं, जानता है इनकी बुनियाद करबला है, जानता है इनका माजी करबला पर है और इनका फ्यूचर मेहदी बहक हजरत इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजह। ये एक मुकम्मल ज़ाबता हयात रखते हैं। इनका निज़ाम गदीर से शुरू हुआ है, इनकी बुनियाद करबला है, इनका मुस्तकबिल अजल जो है ज़हूर मेहदी है और ये वो कौम है जिसका माजी भी बड़ा रोशन है, इनका मुस्तकबिल भी बड़ा रोशन है और दुनिया में आज ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके, पहचाने जा सके। तो उन्होंने हमें अब तीसरे मरहले की जंग में डाल दिया। कहा शियों को शियों से लड़वा दो, मोमिनीन को मोमिनीन से लड़वा दो। लिहाजा हमें अज़ान मोहतरम ये लड़वाया जा रहा है, ये फसाद हो रहा है। इसलिए जहाँ से भी फसाद की बात आए, जहाँ से भी इख्तिलाफ की बात आए, अगर वो मोमिन के खिलाफ बात कर रहा है तो समझ जाए वो फसाद है, अगर मोमिन के खिलाफ बातें कर रहा है तो वो फसाद है। लिहाजा अब हम वो मुसलमान और मसीहियों की जंग से निकल चुके, हम मुसलमान आपस सुन्नी शिया की जंग से निकल चुके। आज हमारी पूरी दुनिया में देख लें, शिया को शिया से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, मोमिन को मोमिन से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें उसका तरफदार नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें कुरान की सायत पे अमल करना चाहिए कि मोमिनीन भाई है और इख्तिलाफ हो जाए तो इस्लाह की बात करो, फिर सुलह की बात करो। जो शख्स सुलह की बात नहीं करता, इस्लाह की बात नहीं करता और फसाद इख्तिलाफ की बात करता है, वो कुरान से और कुरान की तालीमात से इनकार करता है और कुरान के अहकाम को पामाल करता है और वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर रहता है। तो अल्लाह कह रहा है अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो। अल्लाह शायद हो सकता है कि तुम पर जो है रहम किया जा सके, अल्लाह की रहमत से बेहतर में है, अल्लाह की रहमत। इसलिए कुरान कहता है लोगों ऐ साहिबान ईमान, साहिब ईमान का खिताब है, ऐ साहिबान ईमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से। मैं इसके पहले भी मजालिस पढ़ चुका हूँ, एक नुक्ता बयान करना है, गौर कीजिए। बेहबलिल्लाह अल्लाह को कहा गया, बेहबलिल्लाह ज़ात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। रिवायात के मुताबिक जो है खुद ज़ात अमीरुल मोमिनीन को भी हबलुल्लाह कहा गया है कि वो हबलुल्लाह है, और इसी तरह कुरान को भी हबलुल्लाह कहा गया है। और इस तरह छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते नहनु हबलुल्लाह, हम अल्लाह की हबल हैं, यानी यकीनन अहले बैत अमीरुल मोमिनीन कुरान ये अल्लाह की हबल का मिसदाक है। खुदा वंदे मुताल यहाँ पर वजाहत कर रहा है, इत्तेहाद करना है तुम्हें, इत्तफाक करना है, वातसिमू खुदा हुक्म दे रहा है, लेकिन किस पर? कौमियत पर, जबान पर, कबीले पर, फितने पर, फसाद पर नहीं। इस पे तुम्हें इत्तेहाद नहीं करना है, बेहबलिल्लाह दीन पर इत्तेहाद करना है। जो चीज अल्लाह से मंसूब है उस पर इत्तेहाद करना है। लिहाजा अगर हम अल्लाह से मंसूब चीजों पर इत्तेहाद करते हैं, अल्लाह से इत्तेहाद
उस चीज पर जो अल्लाह की बनाई है। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के वली हैं, किताबुल्लाह अल्लाह की किताब है, अहले बैत अल्लाह के नुमाइंदे हैं। दीन पर अगर इत्तेहाद होता है वो इत्तेहाद बरकत का बाइस है और रहमत का बाइस है। बस ऐज़ान मोहतरम, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और दूसरा पैगाम जो देना चाहूंगा ऐज़ान मोहतरम, देखें अगर हमारे घर में कोई शर्मावर बात हो जाए, हमारे घर में हमारी कोई इज्जत का मसला बन जाए, तो हम उसको नशर नहीं करते, उसको हम बयान नहीं करते। ऐज़ान मोहतरम, जिस तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से खता हुई है कि उसको नशर किया जा रहा है, हमारे इख्तिलाफ को मीडिया में नशर किया जाए। दीन यानी कि हमारे घर की एक लड़की की इज्जत या हमारी माँ बहनों की इज्जत ज्यादा है और दीन की इज्जत नहीं है, तशय्यो की इज्जत नहीं है, फिक़्ह आले मोहम्मद की इज्जत नहीं है कि हम उसको खुद जाकर बयान कर रहे हैं, हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो गया, हमारी माँ बारगाह बंद हो गई, फला हो गई। लिहाजा ऐसा बिल्कुल ना, जो खुद पता चल जाए पता चल जाए, हमें किसी एक बंदे को भी इस बात में इन्फॉर्म न करिए, हमारे लिए शर्म आवत है, ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। जैसे हम अपने घर की बातों को छुपा लेते हैं, इसी तरह से ये हमारा घर है, ये हुसैन का घर है, ये फातिमा ज़हरा का घर है, ये आले मोहम्मद के नाम से पहचाना जाता है, इसका नाम जाफरिया है। लिहाजा इसकी इज्जत और हुर्मत हमारे घरों की हुर्मत से कहीं ज्यादा है। किसी भी तरह से हम इसको तशदीद न करें, किसी भी तरह से हम ऐसा काम न करें जिससे मजहब सही हो, कोशिश करें किसी तरह से मसला सॉल्व हो जाए। ये मेरा दूसरा पैगाम था। और तीसरा उसके बाद रखते मसाइल। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी मैं कहीं मजलिस पढ़ रहा था, वहाँ मैंने इस वाक़े को नक़ल किया और यकीनन मैंने अब तक इदारे जाफरिया इस वाक़े को नहीं पढ़ा है, लेकिन अलमनाक वाक़या है जो सुने उसके बाद इंशाअल्लाह मसाइल। तिरहमा एक सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर लिया गया और आप करबला में महसूस कर दिया गया आपको, तब तिरहमा को पता चला इस सफर की हालत में, इनको पता चला कि इमाम हुसैन को करबला में घेर लिया गया है, कि अपने कुछ दोस्तों के साथ थे, तिजारत का काफिला था, किसी जगह सफर कर रहे थे। बहरहाल इसकी डिटेल नहीं, बहरहाल ये अपने घर पे नहीं थे, दूसरे मौजूद नहीं थे, बल्कि ये बाहर थे। इनको उस रास्ते पर चलता है, ये अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं और करबला की तरफ हो जाते हैं। और तिरहमा वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मरसिया पढ़ा, सबसे पहला मरसिया जो पढ़ा है, जो शहादत हुसैन से पहले जिसने मरसिया पढ़ा है, वो जनाब तिरहमा है जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मरसिया पढ़ा। और ये करबला तक पहुंच गए, इमाम हुसैन के साथ बैत भी कर ली और कहा यकीनन मेरा खून आपके खून के साथ और मेरी जान आपकी जान पर फिदा हो जाएगी। इमाम के साथ, अपने दोस्त असहाब के साथ इमाम के कैंप में आ गए, इमाम के क़याम में आ गए ये तिरहमा। लेकिन कुछ अरसे के बाद चूंकि मुसाफरत में थे, उनको ये ख्याल आता है कि मैं जो हूँ अपने घर वालों को जो है कुछ आज़ुका पहुँचा दूँ, जैसे आज की ज़बान करते हैं, क्योंकि सफ़र में तो परेशान हो रहे। ये तिरहमा वो है जब मरसिया पढ़ रहे थे और इमाम हुसैन की तरफ चल रहे थे, तो उनके दोस्त मना कर रहे थे, क्यों ऐसी अफसुर्दा बातें कर रहे हो, क्यों फिर शहादत हुसैन की बात करते हो, इंशाअल्लाह खुदा हुसैन को नुसरत देगा, हुसैन नहीं शहीद होंगे, हम हुसैन की नुसरत करेंगे। तो तिरहमा इतने बात की जाती है कि तिरहमा ये कहते हैं, और यकीनन शान हैदर करार में थे, मुहिब्बान अहले बैत में से, मुहिब्बान इमाम हुसैन में से। तिरहमा कहते हैं मैंने दो नबी मुबारक अमीरुल मोमिनीन से सुना है कि जब उनका फर्जंद करबला में घेर लिया जाएगा तो उसकी शहादत यकीनी है, और जो उसका साथ देगा उसकी शहादत यकीनी है। इसलिए मैं हुसैन का साथ देना चाहता हूँ ताकि उस फौज अजीम पर फायज हो सकूँ, हुसैन की मुसीबत में से। लेकिन जब करबला में कुछ वक्त गुजरता है, आप जाते करबला में 2 मुहर्रम को आए हैं और जब 10 मुहर्रम के बीच में जो है डायलॉग चल रहे थे इमाम हुसैन और साथ के दरमियान। इस अरसे में उन्होंने सोचा कि तो वक्त है, और इमाम अपने दोस्तों से कहा कि मैं चाहता हूँ अपने घर वालों को थोड़ी ग्रोसरी पहुँचा दूँ, क्योंकि मुझे यकीन है मुझे अब शहीद होना है, मैं बच नहीं सकता। लिहाजा वो जाते, कहते कैसे जाओगे, कहा मैं इमाम हुसैन से इजाज़त लेता हूँ। जाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेते, इमाम हुसैन से इजाज़त लेते, वहाँ जब खैमे से निकलते हैं तो रोते हैं, लोग उनसे पूछते हैं क्या इमाम हुसैन ने इजाज़त नहीं दी, तो तिरहमा कहते हैं फातिमा के लाल ने मुझे इजाज़त तो दे दी है, तो कभी गिरिया क्यों कर रहे हैं, कहा गिरिया हुसैन की गुर्बत पे कर रहा हूँ, मैं हुसैन की मज़लूमियत पे गिरिया कर रहा हूँ, कहा क्या हो गया, ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें देर हो जाए, जल्दी जाना और जल्दी वापस आ जाना। कहने मेरा हुसैन इतना गरीब हो चुका है कि वो मेरे लिए
तरह से कह रहे कि देर ना हो जाए, वो इतना नासिर का मददगारों का मोहताज हो गया। लिहाजा मैं यहाँ पे कहूँगा करीमा, ये गुरबत हुसैन पर आंसू नहीं है, ये हुसैन आपको कह रहे थे कि करीमा तुम फौज अजीम से महरूम न रह जाना। अजीजों, तारीख में यही मिलता है कि करीमा जो थे वो बहुत तेजी से कूफे की तरफ गए थे। वापसी में बड़ी तेजी दिखाई जाए, नाका बंदा हुआ था, निकलना भी मुश्किल था और आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा गए भी तेजी से, आए भी तेजी से। लेकिन जब तिरम्मा पहुंचे हैं अज़ीज़ान मोहतरम, उस वक्त असर आशूर हो चुका था। इमाम हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ चुका था और तिरम्मा अपनी किस्मत को रो रहे थे। ये हादसा इतना कर्बनाक है कि वो शख्स जो खिदमत हुसैन में पहुंच चुका हो, जो इमाम हुसैन की बैत कर चुका हो, जो अपना खून, जो दोस्त थे उनके वो शहीद हो गए, आज वो शहदाए करबला में शामिल होते हैं, उन पर दुरूद और सलाम होता है। लेकिन उस फौज अजीम से तिरम्मा महरूम रह गए। ये वाकया हमें क्या बताता है? बताता ये है कि देखो अल्लाह ताला, ये मकतबे हुसैन वो मकतब है जहाँ पे चुनाव अल्लाह की तरफ से होता है। कि जहाँ पे अगर हुर था, दुश्मन के लश्कर में था, आशूर की सुबह पलट कर आ गया, हुसैन ने एक्सेप्ट कर लिया, ता कयामत हुर शहदाए करबला में शामिल हो गया। तिरम्मा हुसैन के वफादार भी थे, हुसैन के मुहिब भी थे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। एक छोटी सी ख्वाहिश ने अल्लाह ने उनको फौज अजीम से महरूम कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर तिरम्मा करबला के मैदान तक पहुंचने के बाद महरूम बारगाह हुसैनी हो सकते हैं, तो आज क्या हम फर्श हुसैनी पर पहुंचने के बाद मुतमईन हो जाएं कि हम हुसैनी हो गए, हमने मकसद हुसैन पूरा कर दिया? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, हो सकता है कोई फर्श हुसैन तक आ जाए, लेकिन उसके बावजूद वो मकसद हुसैन से दूर रह जाए, वो काफिले हुसैन से दूर रह जाए, वो हुसैन के लोगों से दूर रह जाए। यकीनन फिक्र हुसैन से दूर रह जाना ये एक बदकिस्मती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मज़लूम ने बड़ी शानदार कुर्बानी दी और उस कुर्बानी का नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया में हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम किया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बानी किसके लिए देके गए? ताकि ये दीन बाकी रह जाए। और हम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को अगर इख्तिलाफी नाम बना दें, हम अज़ाए हुसैन को इख्तिलाफी अज़ा बना दें, कसम है इस मिंबर रसूल की, इस बारगाह की, खुदा की कसम, हम नाबूद हो जाएंगे, जिक्र हुसैन नाबूद नहीं। हम बेइज्जत हो जाएंगे, जिक्र हुसैन बेइज्जत नहीं होगा। हमारे चेहरे तारीख में मनफूर हो जाएंगे, लेकिन जिक्र हुसैन दमकता और चमकता रहेगा। दुआ करें और कोशिश करें कि अपने आप को जिक्र हुसैन से वाबस्ता रखें, अपनी नस्लों को जिक्र हुसैन से वाबस्ता रखें, किसी भी तरह के इख्तिलाफ से बचें, क्योंकि राह निजात, सफीना निजात अगर कोई है तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम की जात है। अजीजों, इस तरह से इमाम को शहीद किया गया। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा शहादत नसीब होती है। इमाम अलैहिस्सलाम का सर एक मर्तबा तन से जुदा होता है। इमाम अलैहिस्सलाम का एक मर्तबा जो है लाशा पामाल किया जाता है। लेकिन आज जिस इमाम की शहादत मनाने आए हैं, ये वो इमाम है जो कभी बाजार में शहीद होता था, कभी दरबार में शहीद होता था, कभी रास्ते में शहीद होता था, कभी मैदान करबला में शहीद होता था, कभी शाम गरीबा में शहीद होता था। और ऐसी शहादत थी कि 40 बरस तक मेरा इमाम रोता रहा। अजीजों, इमाम क्यों रो रहे हैं? किस मुसीबत में इमाम क्रिया कर रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो हमें शाम ने लूट लिया, हम बर्बाद हो गए। इस मुसीबत में इमाम रोते हैं। और इमाम के दर्द का हाल ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम अगर गोश्त का टुकड़ा देख लेते हैं तो इमाम रोते हैं, पानी बहता देख लेते हैं तो इमाम रोते हैं। इमाम की कनीज कहती है कितनी मर्तबा होता था कि मैं इमाम को वुजू के लिए पानी ला के देती थी, लेकिन इमाम वुजू का पानी देख के इतना गिरिया करते थे कि वो पानी इमाम के आंसुओं से मुज़ाफ हो जाता था। मैं दोबारा पानी भर के लाती थी ताकि इमाम वुजू कर ले, इसलिए कि मेरा इमाम उसी पानी को देख के कहता होगा यही तो वो पानी है जिसकी वजह से मेरा बाबा शहीद हो गया, मेरा चचा अब्बास शहीद हुआ, उसे पानी न मिला, मेरे आयशा को शहीद किया, उन्हें पानी न मिला। अजीज, इमाम मातम करते जाते हैं। इमाम सारी उम्र इमाम अलैहिस्सलाम ने मातम किया। लेकिन हाँ अजीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा अलैहिस्सलाम के साहब आते हैं और जमा होके कहते इमाम बहुत गिरिया कर रहे हैं, हर बात में गिरिया करते हैं। इमाम बाहर निकलते हैं तो कसाब जो होते थे गोश्त पर छुपा देते थे,
जानवरों को छुपा देते थे। इमाम उससे सवाल करते थे, कसाब ये तो बताओ क्या इन जानवरों को तू पानी पिलाता है? तो कसाब कहते थे, अपना रसूल अल्लाह के रसूल के भाई रसूल के फरजंद, हम इनको पानी भी पिलाते हैं, इनको सैर कराते, उसके बाद हम इनको पानी पिलाने के बाद ज़िबा करते भी। इमाम करबला का रुख करके कहते थे वो कौन से मुसलमान थे जिन्होंने मेरे बाबा को पानी न दिया, मेरे भाई अली अकबर को पानी न दिया। इमाम हर बार क्रिया करते थे। एक मर्तबा साहब जमा होते हैं और कहते हैं इमाम का दर्द यकीनन बड़ा दर्द है, लेकिन दो रिवायतें ऐसे बताती हैं कि इमाम का एक और भी दर्द था। एक वो दर्द था कि जब जनाब मुख्तार ने बदला लिया तो मुख्तार से पूछते इमाम, मुलाकात जब होती है तो सवाल ये करते, कहते ये बताओ पहले के हरमला का तूने क्या किया? इसलिए कि इमाम अली असगर के मजलूम खून को नहीं भूल पाते थे, हर चीज पे गिरिया था। नौजवान को देखते थे गिरिया करते थे, जब किसी बच्चे को देखते थे गिरिया करते थे। आखिर में साहब ने कहा ऐसा करो, इमाम बहुत गिरिया कर रहे हैं, इनको मदीने से बाहर ले जाओ। इमाम को मदीने से बाहर बाग में ले जाया गया। जब इमाम बाग में पहुंचे वहां फूल खिले हुए थे। इमाम ने फूलों को देखा और क्रिया करने लगे। कहा इनका बागबान कहाँ है? इतने सरसब्ज और शादाब है, इसके मैंने बड़ा ख्याल रखता, उस बागबान को बुलाओ। जब बुलाया गया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, लगता है तू अपने बागबानी को बहुत एहतमाम से करता है, ये पत्ते मुस्कुरा रहे, ये फूल मुस्कुरा के बताते हैं तो इनको पानी देता है। वो बागबान पूछता है, मौला भी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इसलिए कि हमारे भी आंगन में एक फूल खिला था, लेकिन वो फूल पानी न मिलने से मुरझा गया। मेरा भाई 6 माह का अली असगर था जिसको पानी न मिला। इमाम क्रिया करके चले जाते। जब इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत होती है तो इमाम मोहम्मद बाकर जिस तरह अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ ताहरा के जनाजे में रोए थे, इस तरह से इमाम मोहम्मद बाकर क्रिया करते। पूछने वालों ने पूछा आपने क्या देखा है? 35 साल गुजर गए थे। कहा मैंने जब अपने बाबा का कुर्ता उतारा तो मैंने देखा मेरे बाबा के जिस्म पे अभी भी कोड़ों के निशान थे। ये सैयद सज्जाद था जिसने रास्ते भर कोड़े खाए। खुदावंद मुताल हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा, हमारे इस कलील तवस्सुल को कबूल फरमा। मातम हुसैन दे लाश नु सीने लाके सज्जाद खून रोवे, बैन मजलूमा दे लाश नु सीने लाके सज्जाद खून रोवे, बैन मजलूमा दे लाश नु सीने लाके सज्जाद खून रोवे, बैन मजलूमा दे लाश नु सीने लाके सज्जाद खून रोवे, बैन मजलूमा दे लाश नु सीने लाके सज्जाद खून रोवे, बैन मजलूमा दे लाश नु सीने लाके सज्जाद खून रोवे, बैन मजलूमा दे लाश नु सीने लाके सज्जाद खून रोवे, बैन मजलूमा दे लाश नु सीने लाके सज्जाद खून रोवे, बैन मजलूमा दे लाश नु सीने लाके सज्जाद खून रोवे, बैन मजलूमा दे लाश नु सीने लाके सज्जाद खून रोवे, बैन मजलूमा दे लाश नु
लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके तेरे मुक गए ने सफर होके हाल कहता दे सुड़ावी बोल बाबे दे तू जाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने तेरे मुक गए ने सफर होके हाल कहता दे सुनावी बोल बाबे दे तू जाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके हाथ नब्ज़ाते रख के थके आसी मुहारी ने कितने सावा बाकी रखिया हुण बहन प्यारी ने हाय दुनिया दुनिया तो जांदी मारी मेरे वल वेख सकीना गल विच बावां नू पाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके हाथ नब्ज़ाते रख के थके आसी मुहारी ने कितने सावा बाकी रखिया हुण बहन प्यारी ने हाय दुनिया दुनिया तो जांदी मारी मेरे वल वेख सकीना गल विच बावां नू पाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके तेरे मुक गए ने सफर होके हाल कहता दे सुड़ावी बोल बाबे दे तू जाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशें नू सीने लाके
सी करना तो बेल वारो वारी बोसा ले सारे जख्मा तो कोई वाला वाला तो खाक कट दी कोई बैठी है रोंदी जख्म बाबा दे लुका के सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे लाश नू सीने ला दे सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे लाश नू सीने ला दे सजाद खून रोवे खून पुपिया ने पहला पीता साफ सी करना तो बेल वारो वारी बोसा ले सारे जख्मा तो कोई वाला वाला जो खाक कट दी कोई बैठी है रोंदी जख्म बाबा दे लुका के सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे लाश नू सीने लागे सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे लाश नू सीने लागे सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे तेरे मुक गए ने सफर होके हाल कहता दे सुनावी बोल बाबे दे तू जाके सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे लाश नू सीने लाके सजाद खून रोवे शहर मदीना जे तेरे नाज उठांदा मैं असगर दे वांग तैनू हर दुख तो बचांदा मैं दिल करदा जांदी वारी तैनू सीने उते वेखा वांग दिया दे समा के सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे लाश नू सीने लागे सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे लाश नू सीने लागे सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे शहर मदीना जे तेरे नाज उठांदा मैं असगर दे वांग तैनू हर दुख तो बचांदा मैं दिल करदा जांदी वारी तैनू सीने उते वेखा वांग दिया दे समा के सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे लाश नू सीने सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे लाश नू सीने सजाद खून रोवे बहन मजलूमा दे तेरे मुक गए ने सफर होके हाल कहदा दे सुनावी
नू सीने लागे सज्जाद खून रोवे सज्जाद खून रोवे कैद खाने नू कहंदी सी जदों कलिया तू होवेगा कर करके याद मैनू फिर रातां नू रोवेगा तेनू दे जागी रहाया मैं आप टुर जावांगी तो बस सावादी मुका के सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशे नू सीने लागे सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशे नू सीने लागे सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे कैद खाने नू कहंदी सी जदों कलिया तू होवेगा कर करके याद मैनू फिर रातां नू रोवेगा तेनू दे जागी रहाया मैं अब टुर जावांगी तो बस सावादी मुका के सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशे नू सीने लागे सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशे नू सीने लागे सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे तेरे मुक गए ने सफर होके हाल कहदा दे सुनावी कोल बाबे दे तू जाके सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशे नू सीने लागे सज्जाद खून रोवे नाल रसिया दे सैयद ने किवें बैण नू दफनाया अंजुआ दा गुसल दे के बावा दा कफन पाया रब जाने किवें आबद सी उठिया बैण दी तुरबत ते निशाना नू मिटा के सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशे नू सीने लागे सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशे नू सीने लागे सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे नाल रसिया दे सैयद ने किवें बैण नू दफनाया अंजुआ दा गुसल दे के बावा दा कफन पाया रब जाने किवें आबद सी उठिया बैण दी तुरबत ते निशाना नू मिटा के सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा दे लाशे नू सीने लागे सज्जाद खून रोवे भैन मजलूमा
तेरे मुक गए ने सफर होके हाल कहदा दे सुनावी बोल बाबे दे तू जाके सजाद खून रोवे बैन मजलूमा दे लाशे नू सीने लाके सफरा च समर जिसनू कलमा को सतांदे मर गई है ओह कैद जिनू ख्वाब डरांदे सन तेरे बाजों केड़ा दुनिया ते हुण रोवेगा शिमर तो है तमाचे मुंह ते खाके सजाद खून रोवे बैन मजलूमा दे लाशे नू सीने लाके सजाद खून रोवे बैन मजलूमा दे लाशे सजाद खून रोवे बैन मजलूमा दे सफरा च समर जिसनू कलमा को सतांदे मर गई है ओह कैद जिनू ख्वाब डरांदे सन तेरे बाजों केड़ा दुनिया ते हुण रोवेगा शिमर तो है तमाचे मुंह ते खाके सजाद खून रोवे बैन मजलूमा दे लाशे नू सीने लाके सजाद खून रोवे ये भी लिखना पड़ेगा वो सबको पता अभी तो मेरे सुनने को पता तेरे मुक गए ने सफर होके हाल कहदा दे सुनावी कोल बाबे दे तू जाके सजाद खून रोवे बैन मजलूमा दे लाशे नू सीने